ڈاکٹر ذاکر نائک مبلغ اسلام جن کے بارے میں کوئی بھی الفاظ کرنا ان کے شان شیان کے مطابق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آج ایک بھائی نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا آپ کو لازمی سننا چاہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آئی وانٹ ٹو آسک اے کوشچن، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہندو مذہب ہو، اسلام مذہب ہو یا عیسائیت مذہب ہو، ان سب میں بہت سی سمانتا ایکویلٹی پائی جاتی ہے، پھر بھی ان مذہب کو لے کر صدیوں سے سنگھرش، کانفلکٹ اور من مٹاؤ کیوں؟ اس سندرب میں میرا معنی ہے کہ یدی مذہب ہی آپ کو چاہیے تو انسانیت اینڈ نتھنگ بٹ انسانیت، دیٹ از مانو دھرم، یہ ایک نیا زمانے کی نئی تقاضا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ عیسائیت میں، اسلام میں، ہندو دھرم میں کافی یکسانیت ہے، پھر بھی سنگھرش ہے، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا۔ ہم صرف ماننا چاہیے انسانیت، ہم ماننا چاہیے ہیومینٹی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب انسانیت کس نے لکھی؟ کہا پاتے کوئی کتاب جس کا نام انسانیت ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10 اسٹینڈرڈ پاس کرو، میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو۔ تو انسانیت از 10 اسٹینڈرڈ، اسلام از گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ایک دم۔ اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام، کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف، کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ انسانیت کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے۔ آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں، تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے کون سا زہریلا ہے کیا نہیں۔ آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے۔ آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس، صحیح؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خدا نے انسانوں کو بنایا ہے۔ خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے؟ خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر کو اکٹھا کریں گے، اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا۔ تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب، کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے۔ ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل، مسلم کہیں گے قرآن۔ پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے، کم سے کم اس پہ تو عمل کرو۔ جو اختلاف ہے، اختلاف ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو، کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ جتنے اہم مذاہب ہے دنیا میں، سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی حرام ہے، پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے۔ کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ایک خدا کی، بت پرستی نہ کرے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے۔ سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو۔ اس طریقے سے کم جو ہمارا بنانے والا، ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے، یہی صحیح انسانیت ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا، ویدا میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو، شراب مت پیو۔ کیوں؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، ہمارا بنانے والا جانتا ہے شراب پی جائیں گے تو آپ بہک جائیں گے، غلط کام کریں گے، آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے، سیروسس آف لیور، کینسر آف دی اسوفیگس، کینسر آف دا لیور، ڈیمیج آف دا برین، سینکڑوں بیماری ہوتے۔ تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر، بائبل میں، قرآن میں، شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے، سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو۔ اتنا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے نفرت ہٹ جائیں گی اور صرف امن رہے گا۔ اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے۔ اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ
सलम से, जिसके मानी हैं सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज सिल्म लफ्ज से भी आया है, जिसके मानी हैं अपनी रजा अल्लाह सुब्हाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी हैं अमन, सलामती हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई भी उम्मत जिसमें हमने एक खबरदार करने वाला एक पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने एक हिदायत देने वाला भेजा। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 पैगंबरों के नाम हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कोई भी मुस्लिम नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस्लाम में फर्ज है कि मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, एक महान पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा के जरिए पैदा हुए, बिना कोई वालिद के, बिना कोई पिता के, जो बहुत से मॉडर्न डे क्रिश्चियन आज नहीं मानते, मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और कोढ़ को सुधारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164, और सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 78 में, हम कुछ पैगंबरों के किस्से इस कुरान में बयान करते हैं और कुछ पैगंबरों के नहीं। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र आता है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, और इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 265 एंड 266। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे, और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी यह पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। कई जगह लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अपोस्टल से, अपने साथियों से, कहते हैं, गो इन नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, जेंटाइल्स के पास मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते आप मत जाइए गैर यहूदी के पास,
एंटर ही नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, आप सैमरिटीन्स के शहर में मत जाइए, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say। खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा। ये पेशन गई। कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है। और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे। और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और दोनों यहूद थे। अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे। मिसाल के तौर पर दानियल,
आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है आई शैल रेज देयर प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ब्रेदरन, एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा। और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं। और आगे लिखा है लाइक अनटू दी, मूसा अलैहि सलाम जैसा। हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं आप सबको अपने चैनल में फिर से खुश आमदीद करती हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। आज के भाई ने जो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया वो हम सब के बड़े हैं कि हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी मज़ाहिब भी हमसे मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा। हर मज़ाहिब में जो है तकरार हमेशा ही रही है, तो हम सब एक इंसान होने के नाते ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? हम सब इंसानियत का जो मुकाम है वो यकसा क्यों नहीं हो सकता? हमें एक दूसरे में तकरार, लड़ाई झगड़ा मज़हब को लेके, ज़ात को लेके, इलाकों को लेके, बोलियों को लेकर क्यों रहता है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है कि कोई भी मज़हब तब तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने जो चाहने वालों को, अपने मानने वालों को इंसानियत का सबक ना सिखा दे। कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब, ठीक है, उसमें हर जगह पे हकूकुल इबाद का जिक्र किया गया, बंदों के हकूक़ का जिक्र किया गया है। कोई भी मुसलमान तब तक मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुकम्मल मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं बन सकता जब तक वो हकूकुल इबाद को पूरा नहीं कर लेता। अगर वो हकूकुल इबाद छोड़ कर सिर्फ हकूकुल्लाह के पूरा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि हकूकुल्लाह पूरा होगा तो हकूकुल इबाद पूरा होगा तो हकूकुल्लाह पूरा होगा। हकूकुल इबाद के बगैर हकूकुल्लाह पूरा हो ही नहीं सकता। एक इंसान को पहले इंसानियत के आला मुकाम पर फाइज होना चाहिए, उसके बाद वो अपने मज़हब को लेकर चले। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, पहले हम अच्छा इंसान होने की कोशिश करें। इस्लाम में तो जगह जगह पर इंसानियत का दर्स दिया गया है। नमाज हमें क्या सिखाती है? आजिज़ी, इनकिसारी, ठीक है। नमाज में हमें सिखाया गया कि हमें गरूर तकब्बुर नहीं करना, हमें आजिज़ी इनकिसारी के साथ झुक कर रहना है, मोहब्बत से रहना है। इस्लाम के हर पहलू के अंदर जो है छुपा हुआ दर्स क्या है? इंसानियत का है। तो कुरान मजीद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर चीज़ हमें इंसानियत का दर्स देती है। हमें मुकम्मल इंसान बनाने के लिए हमारे रोल मॉडल भेजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कहा कि उसकी ज़िंदगी का मुताला करो, उसको फ़ॉलो करो। क्यों फ़ॉलो करो? क्योंकि वो इंसानियत का सच चश्मा है। उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने की इंसानियत के तौर तरीके सिखाए। हम उनको फ़ॉलो करें, हम उन पर अमल करें। अगर हम उनके नक्शे कदम पर पूरा उतरते हैं तो उसके बाद हम मुकम्मल इंसान कहलाने के हक़दार हैं। और जब हम मुकम्मल इंसान कहलाने के हक़दार हैं तो फिर हम मज़हब इस्लाम पर पूरा उतरने के हक़दार भी रहते हैं। यानी कि पहले हकूकुल इबाद मुकम्मल होंगे, उसके बाद हकूकुल्लाह मुकम्मल होंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बोला कि अभी तक तो कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी कि जिसमें इंसानियत का दर्स, जिसमें सिर्फ इंसान के ऊपर बात की गई हो। कोई मज़हब ऐसा हो, हर मज़हब में हर मज़हब, हिंदू है, ईसाई है और भी बुत मत, और इसके अलावा और बहुत से मज़ाहिब हैं। हम मज़ाहिब के अंदर फ़िरके बहुत है। इस्लाम में बहुत फ़िरके हैं, हिंदुओं में बहुत फ़िरके हैं, क्रिश्चियंस के बहुत फ़िरके हैं, शिया सुन्नी, बहुत से फ़िरक़ों में हम तकसीम है। लेकिन हर फ़िरके में हर जगह पे पहले हकूकुल इबाद को अव्वल रखा गया कि पहले बंदों के हकूक़ पूरे करो, बंदों के साथ इंसाफ से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते, तुम हक़ और सच का फ़ैसला नहीं कर सकते, तुम अपने मज़हब में नाकाम हो, तुम्हें कोई हक़ नहीं कि तुम एक तरफ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा करो और दूसरी तरफ अपने आप को ये साबित करो कि मैं अच्छा पादरी हूँ, या मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, या मैं अच्छा एक जो है वो पंडित हूँ। और बहुत से नाम है कि हम अपने मज़हब में अच्छा, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मैं गॉड फादर हूँ। तो ये सब सिर्फ दिखावा है। इसके पीछे आपकी अच्छाई, आपकी इंसानियत जो होती है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके चेहरे पर, आपके किरदार पे खुद ही वाज़िया होना शुरू होती हैं। ये चीज़ हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी काम पे लोगों को लाने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए हमें जो है पहले इंसानियत का आला मुकाम जो है वो तय करना होगा। हमें पहले इंसानियत के आले मुकाम पर फ़ाइज़ होना होगा। जब हम इंसानियत के आले मुकाम पर फ़ाइज़ होंगे तो उसके बाद ही लोग हमारी बात मानेंगे, हम हमारी पैरवी करेंगे, हमारी बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे।
ہمارا اخلاق، ہماری محبت ان لوگوں کو ہماری طرف قائل کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جب لوگ ہماری طرف قائل ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں جو کہتے ہیں مانتے ہیں۔ تو لوگوں کو اچھی راہ پہ لانے کے لیے، حق اور سچ کی طرف لانے کے لیے ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا، انسانیت کو اپنانا ہوگا، تاکہ لوگ ہمیں مانیں اور ہمارے پیروی کریں۔ پیروی مطلب کہ ہم کسی کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو اگر ہمارے اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا، ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، ہمیں کسی کی عزت احترام کا ہی خیال نہیں ہوگا، تو ہم کیسے وہ ہماری بات کیسے مانے گا کہ ہم اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اسلام قبول کر لے؟ نہیں، ہم نے پہلے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کو قائل کرنا۔ جب وہ قائل ہو جائے گا پھر وہ ہماری بات مانے گا۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمارا ایک اچھا اخلاق ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر مذہب میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ اچھا انسان بننا ضروری ہے، اخلاقیات کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریے۔ مجھے دیں اجازت، جزاک اللہ خیر۔